Hello everyone, and you are welcome in RS English classes Adda. So we are talking here about some foreign words and phrases, and in this connection I told you many foreign words and phrases. So once again we are here for another foreign words and phrases. So the first one is what? In memoriam, and this is a Latin phrase. This is Latin phrase and the written is in memoriam. And what is the meaning of in memoriam? And the meaning is in मेमोरी ऑफ इज द मीनिंग। ये जो हमारा एक लैटिन जो फ्रेज है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होगी? इन मेमोरी ऑफ, किसी की याद में। सो दैट इज द मीनिंग इन मेमोरी ऑफ। नाउ वी कम टू द नंबर सेकेंड, एंड नंबर सेकेंड इज व्हाट? वर्सेस। this is also Latin word because this is the single word, so this will be the word and there will be the group of words and that will be the phrase. So here this is a word and taken from the list. Latin, this is the Latin word, understand, and the meaning is what? And the meaning is against. Against, you know क्या होता है? What is the meaning of against? Against का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ। किसी के खिलाफ जाने का मतलब क्या है? जब विचारधाराएं या जो विचार है वो क्या होंगे? मिलती नहीं है दूसरे से, तो हम क्या हो जाते हैं? हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तो वही बता रहे वर्सेस, दिस इज लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग इज द अगेंस्ट। नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड, एंड व्हाट इज द नंबर थर्ड? एंड दिस इज अ फ्रेज एंड रिटेन इज व्हाट? टेरा इनकॉग्निटा। टेरा इनकॉग्निटा, ऐसा नहीं पढ़ने से क्या है, लग जा रहा है कि नहीं ये क्या है, ये या तो लैटिन फ्रेज या इस तरह के जो वर्ड्स या फ्रेजेस यहाँ पर लिए गए हैं। टेरा इनकॉग्निटा एंड दिस इज द लैटिन एंड द मीनिंग इज एन अननोन लैंड। एन अननोन लैंड का मतलब क्या होता है? एक अनजान जो जगह है उसी को बता रहा है, एन अननोन लैंड, एंड दैट इज द मीनिंग टेरा इनकॉग्निटा, एंड दिस इज द लैटिन फ्रेज। नाउ वी कम टू द नंबर फोर, एंड नंबर फोर इज व्हाट? विज अविज, एंड दिस इज द फ्रेंच फ्रेज। एफ आर डॉट रहेगा तो इसको फ्रेंच से समझेंगे। एल ए टी डॉट, दैट इज लैटिन, एंड जी ई आर, दैट इज द जर्मन, and once again that is already I told you about FR, that is the French, and LAT, this is the Latin. So we are talking here about, this is number 4, vis a vis, and this is the French phrase, and the meaning is what? The meaning is face to face, that is there will be two meanings. What? One is the face to face। face to face का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आमने सामने। या फिर another meaning will be what? That will be opposite. So here are two meanings of number 4, that is the phrase, foreign phrase. Now we come to the number 5th, and the number 5th is what? Wanderlust. Wanderlust, and this is what? This is the German word, and the meaning is the love of travel. And what is the meaning of the love of travel? A person who loves traveling। जो क्या होता है? ट्रेवलिंग, यानी ट्रेवल करना, यानी यात्रा करना, जिसको पसंद होता है उसी को बता रहा है wanderlust, and this is the German word, and the meaning is the love of travel. Now we come to the number 6, and number 6 is what? Dramatis personae। Dramatis personae, that is Latin phrase, and this is very popular, and the meaning is characters in a drama। कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा, जो ड्रामा होता है, ड्रामा क्या होता है? दैट इज द स्टेज परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है? एक ही ड्रामा के अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं वो किसी के कैरेक्टर को क्या करते हैं? उसके रोल को प्ले करते हैं, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द मीनिंग, कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा। सो दैट इज ड्रामेटिज पर्सनी, दैट इज द लैटिन फ्रेज। नाउ वी कम टू द नंबर 7, and this is a French word, and the meaning is what? The word is basically bon ton, BONTON, that is bon ton, and this is a French word, and the meaning is the height of fashion। The height of fashion, what is the meaning? फैशन का मतलब मैंने बताया कि स्टाइल या फिर तौर तरीका, जब किसी चीज, जो चीजें हैं, जो फैशन है, जो चल रहा है, उसकी बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो वो बता रहा है, दैट इज द मीनिंग इज द हाइट ऑफ फैशन। Now number 8 is corrigendum, and this is the Latin word, and the meaning is corrections in a book। जैसे कोई बुक लिखा गया तो उसमें जो करेक्शंस किए जाते हैं, तो उसी को बता रहा है कि लैटिन में क्या होता है, जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है? करेक्शंस इन अ बुक, एंड द वर्ड इज corrigendum, understand। So I told you
फ्रॉम 1 to 8 एंड दिस इज़ द वीडियो नंबर 6। तो मैंने बहुत सारे इसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट क्या है, होता कुछ नहीं, हम सेलेक्टेड जो चीज़ें पढ़ते हैं, रीज़न क्या है, हम उसको बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, हमको लगता है कि इसी में से आएगा तो हम सेलेक्टेड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि जो भी बहुत पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी या फिर सीटेट, या हम कह सकते हैं कि जो भी टीचर्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस को बेसिकली क्या होता है पूछा जाता है, अंडरस्टैंड। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।